वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Welcome to another milestone in Bhajnavali's history, the 35th year of our spiritual broadcast, consisting of English discourses, Hindi pravachans, Gyan Gita, and melodious bhajans. Bhajnavali is directed and hosted by Sri Gyan Rajhans. This is a non-commercial Vedic religion broadcast supported only by your individual donations, which are tax-deductible in Canada. Donations can be made online and donation receipts can be obtained instantly. भजनावली के 35वें वर्ष के प्रसारण में आपका स्वागत है। इस साप्ताहिक प्रसारण में आप अंग्रेजी और हिंदी प्रवचनों, मधुर भजनों और गीता के श्लोकों की अंग्रेजी और हिंदी व्याख्याएं सुनते हैं। यदि आपको हमारा प्रसारण पसंद है तो कृपया हमें दान देना न भूलें। अब आप ऑनलाइन डोनेशंस भी कर सकते हैं जिसकी टैक्स डिडक्टेबल रिसीट आपको तुरंत मिल सकती है। प्रत्येक दान हमारे लिए बहुमूल्य है क्योंकि भजनावली का प्रत्येक प्रसारण विज्ञापन रहित है। धन्यवाद। Now, here is your host, Sri Gyan Rajhans. Thank you, Shalini. Dear worldwide devotees of Bhajnavali, tomorrow is the first Monday of Lord Shiva's favorite month, also known as Shravani Somvar. Hence, like the previous years, I will once again talk about what is Kanwar, who are the Kanwariyas, why Kanwariyas offer the Ganga Jal to Lord Shiva's Jyotirlingam in Shravan, and why they chant Bol Bam in English, and how to observe Shravani Somvar Vrat in Hindi. And by the way, once again, let me remind you, this Shravani Somvar Vrat begins tomorrow. In Gyan Gita, you will hear the Hindi explanations of the 20th and 21st shlokas of chapter 9 of the Gita. तो भजनावली के विश्वव्यापी भक्तों, अब चूंकि यह श्रावण मास भगवान शिव का सर्वाधिक प्रिय महीना है, मैं आपको सावन और शिव संबंधी बहुत सारी बातें अंग्रेजी और हिंदी में बताऊंगा। और चूंकि सावन का प्रथम सोमवार कल है, अतः श्रावणी सोमवार व्रत करने की विधि भी विस्तार से बताऊंगा। Let me therefore begin today's webcast with this Shravani Shiv Bhajan. संदेशा है लाया, कान्हे कांवर हम सजाएं, शिव नगरिया लेके जाएं, भोले बाबा ने हमको बुलाया। सावन महीना है आया, शिव का संदेशा है लाया, हम सजाए, शिव नगरिया लेके जाए, भोले बाबा ने हमको बुलाया। सावन महीना है आया,
संदेशा है लाया। आज गए भी बाबा को हम पूजेंगे, गंगा जल भर के बोल बम बोलेंगे। हम कांवड़ सजाएंगे, कांधे पर उठाएंगे, शिव को मन में बसा के हम अपना कदम बढ़ाएंगे। बन के हम कांवरिया जाएंगे मंदिरिया। भोले बाबा ने हमको बुलाया, सावन महीना है आया, शिव का संदेशा है लाया। कांधे कांवड़ हम सजाएं, शिव नगरिया लेके जाएं। भोले बाबा ने हमको बुलाया, सावन महीना है आया, शिव का संदेशा है लाया।
शिव शंकर है आओ घरदानी, करते सब पे ही मेहरबानी। मांगे बिना ही देते हैं सबको दानी, में सबसे ये नामी। कोई न इनसे बढ़ के है दूजा, ये तीनों ही लोगों के स्वामी। अपने भक्तों के शिव जी भर देते दामन, लो आया फिर से सावन, चलो शिव जी के आंगन। लो आया फिर से सावन, चलो शिव जी के आंगन। 12 महीनों में उत्तम होता है सावन। Custom of carrying kanwar started in the Treta Yuga, the silver age of Hindu mythology. Lord Rama had carried the Ganges water from Sultanganj in a kanwar and offered to Lord Shiva at Babadham. The legend says that when the churning of oceans, Samudra Manthan, took place in the month of Shravan, 14 different types of rubies came out. 13 of these were distributed amongst the gods and demons, except halahal, the most deadly poison that came out of the ocean. Lord Shiva drank the halahal and stored it in his throat, and thus was named Neelkantha, meaning the blue throat, which is always attributed to Shiva. To reduce the strong effect of this poison, the gods started offering the Ganges water to Lord Shiva to make lessen the effect of the poison. Since this happened in the month of Shravan, hence Shiva devotees offer the Ganges water to Lord Shiva's lingam during the month of Shravan. Now the importance of Bol Bum. The word Bum is a short name of Lords Brahma, Vishnu and Mahesh. The letters Ba came from Brahma and Vishnu and Ma came from Mahesh. Bol Bum is a very effective mantra. When it is chanted during the way, it generates energy and enthusiasm amongst the Kanwariyas and gives them the psychological strength to carry on walking and succeed in covering the long distance from Sultanganj to Babadham. According to the Skand Purana, those who complete the holy journey by reciting Bol Bum obtain the virtues of Ashwamedh Yagna. According to the Puranas, the demon king Ravana had brought the Ganges water from Haridwar and offered to Lord Shiva's lingam in Baba Baidyanath Dham. एक बार आपको यह कहने से मैं नहीं रोक पा रहा हूं कि सावन का महीना मेरे और मेरे परिवार के लिए सर्वाधिक महत्व का है, क्योंकि मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूं। मेरा जन्म सुल्तानगंज, बिहार, गंगा किनारे हुआ और सावन माह में लाखों कांवरिया मेरे जन्म स्थान की उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर मेरे ससुराल बाबा वैद्यनाथ देवघर में स्थित रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग पर, जो लगभग 120 किलोमीटर है, सुल्तानगंज से देवघर 120 किलोमीटर है, पैदल यात्रा कर लिंगाभिषेक करते हैं। हूं न भाग्यशाली, जन्म हुआ गंगा किनारे और ब्याह हुआ ज्योतिर्लिंग स्थान में।
इस कठिन यात्रा में कांवरिया का केवल एक ही सहारा होता है और वह है बोल बम का उच्च स्वर में जाप करना। मैंने स्वयं भी यह तीर्थ यात्रा पैदल की है और सचमुच अद्भुत आंतरिक आनंद का अनुभव किया है। आइए सोमवार व्रत के बारे में भी कुछ कहता चलूं। देखिए, मैंने बार बार बताया है कि उपवास और व्रत में क्या अंतर है। पुनः संक्षेप में, उपवास का अर्थ है सदा अपने इष्ट देव के साथ रहना, और व्रत का अर्थ है कि आपने वरण किया है, प्रतिज्ञा किया है कि यह उपवास आप किस प्रकार करेंगे। तो श्रावण के सोमवार व्रतों का फल इसलिए व्रत करने वाली महिलाओं को नहीं मिलता क्योंकि वे न तो उपवास का सही अर्थ समझती हैं और न व्रत का ही। उदाहरण के लिए, श्रावण मास के सोमवार व्रती महिलाओं को प्रति क्षण, प्रत्येक पल में शिव की याद ही आनी चाहिए, तभी ये व्रत फलवती या फल देने वाले होते हैं। एक उदाहरण आपको देता हूं। देखिए, जिस किसी भी व्यक्ति को जिस चीज, जिस वस्तु, जिस विषय का चिंतन होता है, वह उसी विषय के बारे में सोचता और बोलता रहता है। चाहे वह कितना भी प्रयत्न करे, कितना भी नाटक करे, अंत में जो प्रिय विषय है उसी की ओर उसकी भावना चली जाती है। उदाहरण के लिए, जो धन का प्रेमी है, वह जितनी शास्त्रीय बात करे, अंत में धन के विषय पर आ जाएगा और पुनः घूम फिरकर शास्त्र विषय पर कभी नहीं पहुंचेगा। इसी प्रकार जिसकी आसक्ति शिव में होगी, वह इधर उधर कुछ बात करेगा भी तो अंत में शिव की ही बात करने लगेगा और उसकी कभी समाप्ति ही नहीं होगी। वाणी मन का निश्चित प्रतिबिंब होती है। जिस प्रकार मनुष्य के मुख खोलते ही कस्तूरी, इलायची, मूली, लहसुन आदि व्यक्ति का खाद्य तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वाणी के द्वारा मन का स्तर प्रकट हो जाता है। यदि पिघले हुए धातु को राक्षस के सांचे में डाल दिया जाए तो वह राक्षस की मूर्ति बन जाती है, और यदि दुर्गा में डाल दिया जाता है तो दुर्गा की मूर्ति बन जाती है। इसमें न सांचे का दोष है न धातु का, परंतु डालने वाला ही जिम्मेवार है। इसी प्रकार इच्छा के द्वारा पिघला हुआ मन संसार रूपी सांचे में डालने पर संसार बन जाता है और शिव के सांचे में डालने से शिव बन जाता है। मन को डालने का सबसे सुंदर तरीका वाणी के द्वारा अभिव्यक्ति है। तो श्रावण के दिनों में जब आप शिवोपासना कर रहे हों तो ध्यान रहे कि शिवोपासना का अर्थ है प्रत्येक पल मन, वचन और कर्म से शिव का ध्यान करना। जब भी मन में कोई बात आए तो शिव संबंधी आए, वचन में कोई बात आए तो शिव संबंधी आए, और कर्म आपसे कोई हो तो वह भी शिव संबंधी। और तभी औघड़दानी महादयालु शिव अपनी कृपा दर्शाते हैं, दया करते हैं। अर्थात पूजा आदि में यदि आपसे कोई त्रुटि भी हो गई, फिर भी वो क्षमा के सागर आपको क्षमा कर सदा सच्ची राह दिखाएंगे। गीता का है ये ज्ञान परम कल्याणी, बोले अर्जुन से कृष्ण मधुर ये वाणी। गीता का है Now, Gyan Gita for our younger generation.
a regular feature of the Faiznawali radio program. 20वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, त्रैविद्या माम सोम पाह पूत पापा यज्ञैः इष्ट्वा स्वः गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। अर्थात तीनों वेदों को जानने वाले, सोम रस का पान करने वाले, पाप से रहित कर्मकांडी लोग यज्ञों द्वारा मेरी उपासना करते हुए स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। वे अपने पुण्य कर्मों को लेकर इंद्रलोक में पहुंचते हैं, वहां दिव्य देव दुर्लभ भोगों को भोगते हैं। तथा 21वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, ते तंग भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। अर्थात वे उस विशाल स्वर्ग लोक का आनंद भोग लेने के बाद जब उनका संचित पुण्य क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब फिर मर्त्यलोक में आ जाते। इस प्रकार तीनों वेदों की शरण में आने वाले ये कर्मकांडी लोग कामनाओं अर्थात भोगों की कामना करते रहने के कारण जन्म मरण के चक्कर काटा करते। अब इन दोनों श्लोकों की विस्तृत व्याख्या तनिक ध्यान से सुने। अब तक अर्थात 9वें अध्याय के 19वें श्लोक तक श्री भगवान ने हमें बताया कि उनके विराट रूप की उपासना किस प्रकार की जा सकती है एवं उनकी दिव्य विभूतियां सारे विश्व का संचालन किस प्रकार करती हैं। अब इन श्लोकों में अर्थात 20वें और 21वें श्लोकों में वे बता रहे हैं कि फल में आसक्त हुए लोगों की उपासना का क्या परिणाम होता है। वे कहते हैं कि ऋक, साम और यजुर्वेदों में ऐसे कर्म कांड वर्णित हैं जिन्हें यदि विधि पूर्वक संपन्न किया जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। यहां पुनः याद दिला दूं कि गीता में चौथे वेद अथर्ववेद की चर्चा नहीं है। क्यों? इसका उत्तर मैंने 17वें श्लोक की व्याख्या में दे दिया था। अस्तु, श्री भगवान कहते हैं कि जो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से वेदों में वर्णित यज्ञ आदि करते हैं, वे एक निश्चित समय के लिए स्वर्ग का सुख भोगते। निश्चित समय के लिए ही क्यों? क्योंकि निश्चित उद्देश्य और निश्चित अर्थात अनादि और विनाशी सुख की प्राप्ति नहीं करा सकता। फलस्वरूप ऐसे लोग स्वर्ग तो अवश्य जाते हैं, वहां के देव दुर्लभ सुख को भी भोगते हैं, परंतु निश्चित समय की समाप्ति के पश्चात पुनः इस मृत्यु लोक में उन्हें वापस आना होता। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं, ते तंग भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम, अर्थात स्वर्ग के विशाल भोगों को भोगते हुए क्षीणे पुण्य, जब सभी पुण्य कर्म फल समाप्त हो जाते हैं अर्थात संचित सुकर्म का क्षय हो जाता है, तब मर्त्यलोकम विशन्ति, अर्थात इसी धरती पर जहां जन्म मरण होता है वापस आना पड़ता है किसी नए शरीर में पुनः सांसारिक आदि व्याधियों से जूझने के लिए। इसी अज्ञानतावश वे त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, तीनों वेदों में कहे हुए स्वकाम कर्मकांड का आश्रय लेते। फलस्वरूप वे गतागतम में फंस जाते हैं, अर्थात स्वर्गलोक और मृत्युलोक के बीच डोलते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो काम कामा, अपने इंद्रिय सुखों की कामना बारंबार करते रहना।
एक कामना पूर्ण हुई, दूसरी कामना जागी। जब तक कामनाएं आप में शेष रहीं, आप स्वर्ग और मृत्यु लोक के बीच डोलते ही रहेंगे। यही कारण है कि वेदों के अंत में अर्थात वेदांत में उपनिषद आए, जिन्होंने स्वर्ग प्राप्ति को एक तुच्छ उपलब्धि माना। वेदांत कहता है यहीं इसी धरती पर, इसी मानव शरीर में आप उस विनाशी सुख को पा सकते हैं जो स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं है। इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह स्वर्ग आपके ही अंदर है। तो बस आज इतना ही। इस पावन सावन महीने में भोले बाबा वैद्यनाथ की कृपा आप पर एवं आपके परिवार पर भरपूर हो, यही मेरी प्रार्थना एवं कामना है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।